Okay, so okay, it's a fresh start. Even though we are on the same chapter, okay, even though we are on the same chapter, that is, let me show you first. So we are on the network layer right now, okay, and I think the distance vector routing and the link district routing we have covered, and after that we have few topics which are remaining. Let me show you with the help of the syllabus copy. Okay, if you see the syllabus copy, then you can see these protocols. Okay, 4.3. Let me show you the chapter also. This is the fourth chapter, network layer. Okay, in this network layer we have the one topic which is protocols, in which we are having a few protocols which are important as far as your network layer is concerned, because the main thing is that these protocol works at the network layer only. Okay, so we are going to learn about the ARP, then RARP, ICMP, IGMP वगैरह वगैरह, ये जो protocols हम लोग पढ़ेंगे. Okay, so again the question, acha, uske baad mein we have 4.4, that is congestion control. We have already done this congestion control, but we have few algorithms which are remaining, like token and leaky bucket algorithm. As I told you, those balti wale algorithms are remaining. So after covering this particular protocols, we'll be covering these leaky and token bucket algorithms. Okay, so the target is that, we'll try to cover these ARP, RARP. Okay, so these protocols will try to cover all these protocols. आज का और कल के सेशन में we will try to cover. Okay, और उसके बाद में भी टोकन एंड लीक में by the end of this particular week, so we'll be covering this particular complete topic. Okay, यानी कि complete chapter नेटवर्क लेयर आपका पूरा complete हो जाना चाहिए. Okay, बिकॉज इसके अंदर आपको थोड़ा बताना है, दैट इज इन द ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एज यू कैन सी ओनली 6 मार्क्स का है ये. और जो एप्लीकेशन लेयर है, इसमें से भी कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं. ठीक है, सो होप सो विल बी कवरिंग at the end of this month. Will be we can cover we can cover, we can say 95% of the syllabus can be covered up to till end of this month. Okay, so so with this, let us start with this protocol, that is ARP, RARP, and all that. Okay. So as I say all of you that whenever you're going to start the new topic, or whenever you are learning new topic, whenever you are starting with the new topic, okay, so then first of all you need to find the reason behind that topic. Okay, you need to find the existence behind this topic. Okay, why this topic is required. Okay, why this topic is required. If this why parameter comes first, then only you will be able to understand the concept behind that topic. तो समझना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज जब आप लोग वाई समझ लेते हैं, तो फिर उसके बारे में समझना बहुत सिंपल है. आपको पता है कि भाई, मतलब हम लोग पानी क्यों पीते हैं, ये पानी आपको दिया गया है पीने के लिए, तो पानी क्यों पीते हैं. दैट्स अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल, बट स्टिल फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस व्हाई. ओके, एवरी टाइम आई टेल यू कि यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई. ठीक है, so this is not applicable for only for this subject. Everywhere wherever you are learning anything, so just question yourself why this particular topic. Okay, so it is up to you. The stupid example is with you only. ये पानी आया तो पानी आप क्यों पीते हो, बिकॉज यू वांट टू लीव. ओके, तो उसके लिए आप पानी पियो. तो चलो, विद दिस वी कैन स्टार्ट विद एड्रेस मैपिंग. ओके, so first of all, let me show you and let me tell you that we are having two types of addresses. Okay, as we know that we are having logical address and we have physical address. Okay, and ये हम सबको पता है कि we have logical addresses and we have physical addresses. लॉजिकल ये सब जो लिखा हुआ मत पढ़ो, जहाँ रिक्वायर्ड होगा आपको मैं बताऊंगा, या मैं पढ़ूंगा, या जो भी करना है. बट अगर अगर ऐसी चीजें हम लोग समझ सकते हैं तो इट इज ओके. So logical address and physical address are the two types of addresses which are there in our network. Okay, and as you know कि जो logical address होता है आपका, वो कौन सा एड्रेस होता है, दिस इज आपका आईपी एड्रेस होता है. और आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है, दैट फिजिकल एड्रेस इज नथिंग बट योर मैक एड्रेस. ओके, एंड बोथ द एड्रेसेस आर रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट लेयर्स. ओके, जैसे आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर पे कौन सा आपका मतलब एड्रेस आता है,
एट डेटा लिंक लेयर विच इज द सेकेंड लेयर, यहाँ पर आपका जो एड्रेस काम करता है वो है आपका मैक एड्रेस, मतलब कि आपका फिजिकल एड्रेस। ओके, आफ्टर दैट फिजिकल एड्रेस आपके नेटवर्क लेयर पे, यानी कि उसके बाद वाले लेयर पे आपका जो एड्रेस आता है, दैट एड्रेस इज नथिंग बट योर आईपी एड्रेस, जो कि हम लोग अभी ये चैप्टर हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, ओके। So we have the clear understanding of these two addresses. One is the logical address and second is the physical address. Okay. So we have two types of addresses. Let me write it down here. One is the logical address and second is the physical address. Okay. That logical address is also called as the IP address. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द मैक एड्रेस। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमारे पास में क्लियर है। ओके, आफ्टर दैट नाउ जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में वो है एड्रेस मैपिंग। ओके, अभी एड्रेस मैपिंग क्या होता है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में स्टिल। तो एड्रेस मैपिंग, ओके, तो एड्रेस मैपिंग बेसिकली ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि मैक बाइंडिंग देखा होगा, आईपी बाइंडिंग देखा होगा, ये आपने खाली सुना होगा, आपने देखा बहुत कम चांसेस है आपने कहीं देखा हो। मैपिंग बेसिकली किसी दो चीज़ को मैप करना, किसी दो चीज़ को कोरिलेट करना, किसी दो चीज़ को जॉइन करना, किसी दो चीज़ को मतलब कि बोलते हैं ना कि उसको रिलेट करना आपस में। सो दैट इज नथिंग बट द मैपिंग। ओके, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड कि मैपिंग इज नथिंग बट कोरिलेटिंग द टू थिंग्स, टू टर्म्स और टू प्रोडक्ट। ओके, ऐसे मैप करना। Okay, so we have two kinds of mapping over here. One is static mapping and second is dynamic mapping. And obviously, if we are talking about this logical address and the physical address, then the mapping will be between the logical and the physical address, यानी दोनों की मैपिंग रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो एड्रेस मैपिंग तो हमारे पास दो एड्रेसेस है, वी हैव लॉजिकल एड्रेस एंड वी हैव फिजिकल एड्रेस। ओके, सो वी आर गोइंग टू मैप द लॉजिकल एड्रेस विद द फिजिकल एड्रेस। ओके, और आपको पता है लॉजिकल एड्रेस चेंज हो सकता है, मतलब आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होता है आइडियली। ठीक है, इन द आइडियल टर्म्स, इन द आइडियल कंडीशन फिजिकल एड्रेस डज नॉट चेंज। फिजिकल इज आपका फिजिकल एड्रेस इज प्रिंटेड ऑन द जो आपका लैंड कार्ड होता है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड होता भी है। ठीक है, तो लैंड कार्ड विल रिमेन सेम बट द लॉजिकल एड्रेस विल मे चेंज। ओके, सो नाउ वी हैव दीज टू एड्रेसेस, सो इनकी हमको मैपिंग करना है। ठीक है, इनकी हमको मैपिंग करना है। जैसे होता है ना, आप अक्सर क्या करते हैं कि भाई देखो जेल में क्या होता है, प्रेजेंस जो होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके बैरक नंबर होते हैं। ठीक है, उनके क्या होता है, बैरक नंबर। ठीक है, तो बैरक नंबर होता है एक, और दूसरा क्या होता है, उनका खुद का नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैदी का नंबर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस समझने के लिए कर रहे हैं। एंड वी हैव 4 बैरक्स इन द प्रिजन। ओके, तो ये जो हमारे 4 बैरक्स है, तो अगर कभी अगर किसी का नंबर अगर फॉर एग्जांपल ऐसा है 2 241, ठीक है, या 2-241 ऐसा, या B2-241, सो लाइक दैट। तो मतलब वो बैरक नंबर 2 का है। हम लोगों ने क्या उसको मैप किया, ये जो कैदी है ये आपके बैरक नंबर, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज 4। ठीक है, सो द पर्सन जो आपका प्रिजनर है, so the person, the prisoner belong to barrack number 2, and in barrack number 2 he is the 241 नंबर। ओके, या फिर इतने अगर कैदी नहीं आते होंगे तो चलो इसको 24 मान लो। ठीक है, सो B2-24 इट मीन्स के बैरक नंबर 2 में 24 नंबर का ये कैदी है। So like that, what we have done, the main thing behind showing this example is that कि we have mapped a barrack। ठीक है, ये जो आपका बैरक है, तो इस बैरक के अंदर हम लोग ने कैदी को हम लोग ने क्या किया, मैप किया। ठीक है, तो दोनों की हम लोग ने मैपिंग कर दी। नाउ ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स, ओके, वी डोंट हैव टू मैप ईच एंड एवरी टाइम। ओके, so the person, the prisoner is already allotted that particular barrack। तो वैसा कुछ एग्जांपल हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द मैपिंग। ओके, सो नाउ वी हैव टू काइंड्स ऑफ मैपिंग, एंड मैपिंग क्यों करते हैं हम लोग ये भी देखेंगे आगे। ठीक है, सो मैपिंग ऑफ दीज टू एड्रेसेस आर देयर, वन इज द स्टैटिक मैपिंग, one is static mapping and second is dynamic mapping। ठीक है,
देखो मैं आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, हमको हमारा अलग है टॉपिक क्या था, पहले बताओ सब मुझे, अपना टॉपिक क्या था, एआरपी था, लेकिन मैं आपको एआरपी डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको ये जानना सिखा रहा हूँ कि पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन वाई एआरपी एंड आरएआरपी, वाई आर ए सॉरी वाई एआरपी एंड आरएआरपी, ये दोनों प्रोटोकॉल क्यों है, वो क्यों के चक्कर में हम लोग को ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का समझना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं। सो डायनामिक मैपिंग, ओके, तो स्टैटिक मैपिंग एंड डायनामिक मैपिंग, मत परेशान करो मैं। तो स्टैटिक मैपिंग एंड डायनामिक मैपिंग, ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टैटिक मैपिंग एंड डायनामिक मैपिंग, ठीक है। अब स्टैटिक मैपिंग और डायनामिक मैपिंग में फ़र्क क्या रहेगा ये देखते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैटिक मैपिंग, इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल आपकी लैब है, लैब नंबर 1, ठीक है, यू हैव एन आइडिया अबाउट आवर लैब्स, ओके, वी हैव टोटल 9 लैब्स, ओके, एंड in each and every lab we have 24 की capacity, okay, so we have 24 for student and one for the mentor or the faculty, so it means that in each and every lab we have capacity of 25 computers, okay, इतना आपको आपको याद होगा। तो हमारा जो है ना लैब नंबर 1 है, ठीक है। अब इस लैब नंबर 1 के अंदर हमारे पास में कोई प्रैक्टिकल के लिए आया है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने स्टैटिक मैपिंग करके रखी है। फॉर एग्जांपल ये आपका मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 4, मशीन नंबर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ से आपकी मैप आपने आपने मैप करके रखा है, क्यों, क्योंकि आपको पता रहे कि भाई लैब नंबर 1 में जो नंबर 4 का पीसी है, इस नंबर 4 के पीसी को हमने कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, ठीक है। So this is the one way, that this is the static mapping, okay, what we have done, we have mapped IP address and the MAC address manually, okay, कैसे, आपने इस लैब के अंदर आईपी एड्रेस देना शुरू किए, इसको आपने दिया 172.16 डॉट तो 1.1 दिया, इसको तो 1.2 दिया, इसको तो 1.3 दिया, इसको तो 1.4 दिया, 1.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, तो आपका 24th नंबर का जो पीसी था उसको हम लोग ने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आपका एक टेबल बन गया यहाँ पर, ठीक है। आपका जो टेबल बना वो कैसे बना, ये आपका सीरियल नंबर, ठीक है, ये आपका मशीन नंबर और ये आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना, सीरियल नंबर और ये आपका आईपी एड्रेस, सॉरी मैंने क्या बोला, मशीन नंबर और ये आपका आईपी एड्रेस। तो मशीन नंबर 1 तो आपका सीरियल नंबर 1, मशीन नंबर 1 है तो सीरियल नंबर देने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर अगर सीरियल वाइज है तो ठीक है। तो मशीन नंबर आपने दिया, फिर मशीन का कुछ कोड वोड आपने दिया होगा तो मशीन का कोड भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। और इस मशीन को आपने कौन सा आईपी एड्रेस दिया, 172.16.1.1 आपने आईपी दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जितना भी मैनुअल असाइनमेंट किया है, ठीक है, जितना भी आपने मैनुअल असाइनमेंट किया है, दैट मैनुअल असाइनमेंट विल कम होगा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, मैनुअली आपने इस पर्टिकुलर आईपी सॉरी इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर जो मैक एड्रेस था, उसको आपने मैप कर दिया, उसको आपने एक आईपी एड्रेस दे दिया, आईपी एड्रेस की, ये क्या हो गई, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैपिंग बोलते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड एज स्टैटिक मैपिंग, ठीक है, जहाँ पर हम लोग मैनुअली सारा का सारा जो है ना अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्टैटिक मैपिंग है। इसके अंदर हम लोग को ना क्या होगा कि हम लोग को थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आगे चल के फिर जो है ना आपको मतलब जो ट्रैकिंग रहेंगी, मॉनिटरिंग रहेंगी, सो ऑल दोज टास्क विल बी वेरी सिंपल व्हेन यू विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट, मतलब क्या फ्यूचर में जब भी प्रैक्टिकल्स वगैरह ले रहे हैं, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस दैट कि अच्छा आप ये भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके अगर कभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आपके ज़ाहिर बात है हमारा जो बैच होता है वो 20 का बैच होता है, ठीक है। और 20 का बैच होगा या 22 का बैच होगा, 24 मैक्सिमम रखते हैं हम लोग। बहुत रेयर केस में कहीं अगर कैपेसिटी मेंटेन नहीं हो रही है तो उसमें एक आध ज़्यादा हो जाता है, बट नॉर्मली 20, 23, 24 मैक्सिमम रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे स्टूडेंट के नेम भी हम लोग के असाइन है, ठीक है। हम लोग ये भी करते हैं कि हम लोग जो भी मतलब आपके आईपी एड्रेसेस है वो, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड स्टूडेंट को ये आईपी एड्रेस अलॉट है, तो ये बंदा यहाँ पर बैठ के, बिकॉज नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मशीन, if anything goes wrong then he will be the responsible, okay, he will be responsible for that activity whatever is done from that machine, okay। So xyz ये pqr है,
एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैपिंग कर दी, ठीक है। तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, और उसके बाद में फिर आपका, अच्छा यहाँ पर मैं बोला आपको मशीन नंबर के बजाय आप लोग मैक एड्रेस ले लो, ठीक है। तो ये आपका एमएसी नंबर, मैक नंबर या मैक एड्रेस सॉरी बोलना चाहिए। तो ये इस मशीन का मैक एड्रेस आ गया, इस मशीन को जो आईपी एड्रेस अलॉट किए वो आ गया, और इस मशीन पे जो बंदा बैठेगा, जो स्टूडेंट बैठेगा, उसका नाम यहाँ पर आ गया, ठीक है। हो गई आपकी स्टैटिक मैपिंग। अब स्टैटिक मैपिंग एक बार करना रहती है आपको, लेकिन अगर कभी इनकेस कोई मशीन जाती है तो फिर आपको उसमें चेंजेस करना होते हैं, ठीक है। अगर कोई न्यू मशीन आती है तो आपको उसके अंदर क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, और उसको आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। अपॉन एडिशन एंड अपॉन रिमूवल ऑफ एनी मशीन फ्रॉम द नेटवर्क और फ्रॉम द लैब, यू नीड टू मेंटेन, यू नीड टू मॉडिफाई, और यू नीड टू मेक चेंजेस इन द टेबल, okay. So that is called static mapping, okay. I hope that everyone is has understood what is static mapping. समझे नहीं समझे? अरे हाँ यानी कुछ तो बोलो। हाँ बोलो, आप लोग इतने बिजी है, आप लोग के रिप्लाई भी नहीं। अब आते हैं डायनामिक मैपिंग के। डायनामिक मैपिंग, ओके। अब इस डायनामिक मैपिंग में हम लोग को क्या करना है? इस डायनामिक मैपिंग को करने के लिए हमारे पास में जो प्रोटोकॉल्स जिनकी मैं बात कर रहा था वो प्रोटोकॉल्स है। लाइक स्टैटिक मैपिंग तो हो गई। स्टैटिक मैपिंग आप लोगों ने देखा कि वी हैव टू डू ऑल दोस टास्क मैनुअली, वी हैव टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ द मैक एड्रेसेस, ओके, we have to maintain the list of IP addresses, and we have to maintain the list of the student to whom those machines are allotted, okay. So that the person, the student will be responsible for that machine, okay. If anything goes wrong in some, if we found any unethical activity from that machine, then the students will be responsible for that activity, okay. So in this way the things can be controlled, the things can be monitored, okay. सो एक वो तरीका है स्टैटिक मैपिंग करने का, मतलब एक मैपिंग करने का एक वो तरीका है जहाँ पर सारा काम मैनुअल करना पड़ा, ओके। नाउ वी हैव अनदर वे, दैट इज डायनामिक मैपिंग, दैट हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग को सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़े, ठीक है। ये सारा काम आपका क्या हो जाए, अचानक में हो जाए, अचानक बोलते हैं जिसको हम लोग ऑटोमेशन में हो जाए, ठीक है। और इसको इसके अंदर हम लोग कुछ करना ना पड़े, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव टू प्रोटोकॉल्स। सिंपली मैं ज़्यादा अब डीप में नहीं जाऊँगा, बिकॉज बहुत बहुत टाइम हो गया है खाली उतना कॉन्सेप्ट बताने के लिए। तो वी हैव टू प्रोटोकॉल्स, वन इज ARP, सेकंड इज RARP, ठीक है। आई थिंक दैट यू पीपल्स आर अवेयर ऑफ दिस प्रोटोकॉल, इफ नॉट देन वी कैन, वी आर जस्ट, हम लोग तो भी जा ही रहे हैं, ठीक है। So ARP is nothing but your address resolution protocol, ठीक है। That is address resolution protocol, ठीक है। That is a very simple protocol, ARP and RARP, and this is reverse, okay. It works in the reverse manner. It's a reverse address resolution protocol, ठीक है। So these are the two protocol which perform the task of mapping but in the dynamic way, ठीक है। So for dynamic mapping we have two protocol, one is ARP and RARP, okay। यहाँ तक समझा है अभी? बहुत सिंपल काम है, 2 मिनट का काम है इनका, सिंपल, ठीक है। So now we'll try to understand from this particular स्लाइड, ओके। जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा मैं आपको बताऊंगा। सीधे स्टैटिक मैपिंग यहाँ पर बताया, डायनामिक मैपिंग में ARP एंड RARP, ओके। सो इन डायनामिक मैपिंग ईच टाइम अ मशीन नोज द लॉजिकल एड्रेस, मतलब IP एड्रेस पता है ऑफ अनदर मशीन, इट कैन यूज अ प्रोटोकॉल टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस। एक एड्रेस पता है, दूसरा एड्रेस मालूम करना है, AR आप मतलब प्रोटोकॉल का यूज करके उसको आप पता कर सकते हैं। दूसरा वाला पता है, पहला वाला मालूम करना है, प्रोटोकॉल यूज करो और पता कर लो, ठीक है। So we have these two protocols to which we'll be working and we'll be finding the address, okay. Now this is a very basic diagram you need to remember. So ARP का काम क्या है? ARP works like it takes the logical address and it gives you the physical address, ठीक है। मतलब ये अपना लॉजिकल एड्रेस ये मांगेगा भाई, ठीक है। कोई भी मशीन अपना लॉजिकल एड्रेस देगी ARP को, और उसके बाद में उसको उसका जो है ना तो फिजिकल एड्रेस मिलेगा, अगर अगर कोई मशीन XYZ थी, ठीक है।
और AR आपका RARP जो कि रिवर्स में काम करता है, इट टेक्स द फिजिकल एड्रेस, ठीक है। कोई मशीन चाहती है, कोई मशीन अगर न्यू ऐड हुई है और वो चाहती है कि मुझे मेरा लॉजिकल एड्रेस, मुझे आईपी एड्रेस असाइन हो, ठीक है, विच इज यूजुअली डन इन द आपका DHCP में होता है, ठीक है, डायनामिक एलोकेशन होता है। तो आपका वो क्या करेंगी, अपना फिजिकल एड्रेस देंगी, ठीक है, माय फिजिकल माय मैक एड्रेस इज दिस वन, प्लीज अलॉट द लॉजिकल एड्रेस फॉर मी। तो RARP आपको ये काम करके देगा, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। This is the position of ARP and RARP in TCP/IP protocols, okay? तो one and the same thing, it works on the network layer। चाहे आप OSI की बात करो, TCP की बात करो, कुछ एक दो लेयर का फर्क है, ठीक है। तो आपका जो ARP है और RARP है, these are the two dynamic mapping protocol, these are called as dynamic mapping protocol, dynamic address mapping protocol, which works at the network layer, okay, that is ARP and RARP, याद रहेगा ये। So ARP, RARP, ICMP, IGMP, IP, all this protocol works at the network layer। आगे बढ़ते हैं। Now the work for ARP operation, now the you can see the diagram for ARP operation, बहुत सिंपल है इसका। आपको खाली डायग्राम अपने दिमाग में एक बार प्रिंट कर लेना है, एक बार प्रिंट हो गया तो आई एम श्योर दैट यू विल नेवर फॉरगेट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, और इसका वर्किंग आपके दिमाग में रहेगा तो आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो see, your system is sending a request. Your system is sending a request in the network and asking, looking for physical address of the node with the IP address this one, ठीक है। तो भाई देखो, ये इस पर्टिकुलर IP एड्रेस इसने का IP एड्रेस पास किया है अपने रिक्वेस्ट में, जो कि आपका ARP रिक्वेस्ट है, ठीक है। ARP रिक्वेस्ट है तो मतलब ARP पैकेट है एक्चुअली। तो एक IP एड्रेस दिया है और उसको और बोला है कि भाई मुझे इस IP एड्रेस का क्या चाहिए, मुझे फिजिकल एड्रेस चाहिए, मतलब इसका मुझे मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है। आई वांट टू नो द मैक एड्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, ओके। तो उसने एक ARP रिक्वेस्ट उसने डाली नेटवर्क में, सॉरी सिस्टम ए ने नेटवर्क में एक ARP रिक्वेस्ट डाला है, ठीक है। अब ये जो पैकेट आपका जो रिक्वेस्ट है, दैट रिक्वेस्ट विल बी ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट, ओके, देन इट विल गो टू ईच एंड एवरी मशीन। सो नाउ यू कैन सी ये हर जगह पे जा रहा है, ठीक है। Your request is going to this machine also, to this machine, to this machine and to the last machine also, ठीक है। तो अब ये जो आईपी एड्रेस है, कहाँ गया हमारा ये कर्सर, हाँ। तो हमारा जो ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस ना ही ये मशीन का है, ना ही ये मशीन का है, ना ही ये मशीन का है, बल्कि वो ये मशीन का है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये मशीन के पास में जाएगा, ये मशीन उसको एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने के बाद में क्या करेगा, वहाँ से रिप्लाई आएगा, सिस्टम बी विल सेंड अ रिप्लाई, जहाँ से रिक्वेस्ट आई है वहीं पे रिप्लाई भेजेगा। क्या रिप्लाई भेजेगा, जब ये ARP रिक्वेस्ट था तो ARP रिक्वेस्ट अगर है तो वो क्या भेजेगा, ARP रिप्लाई भेजेगा। इट विल सेंड ARP रिप्लाई, और ARP रिप्लाई में क्या होना चाहिए, हमेशा उसका फिजिकल एड्रेस, मतलब उसका मैक एड्रेस अपना भेजेगा, भाई आपने रिक्वेस्ट किए थे तो ये लो हमारा मैक एड्रेस, ठीक है। सो ये क्या करता है, सिंपल ARP ऑपरेशन में क्या हुआ, इसने एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड किया, भाई ये लॉजिकल एड्रेस जिस किसी का भी हो वो अपना मैक एड्रेस बड़ा इकराम मुझे सेंड करे। क्या भेजा, सेंड आपके सिस्टम ए ने, भाई दिस इज द आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस जिस किसी का भी हो वो अपना मैक एड्रेस मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स इतना उसने बोला। तो ये जो रिक्वेस्ट उसने किया, ये रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं ARP रिक्वेस्ट, ओके। एंड वी हैव अ सेपरेट पैकेट फॉर्मेट फॉर ARP रिक्वेस्ट, ओके। उस वो होने के बाद में ये जो ARP पैकेट है, ये जिस किसी भी सिस्टम के पास में जाएगा, जो कि वो सिस्टम है एक्चुअली, तो ये पहुंचा सिस्टम बी के पास में, बिकॉज वो आईपी एड्रेस सिस्टम बी का था। नाउ सिस्टम बी will send a reply, okay, and that reply will be called as the ARP reply, okay। In that reply, what will be the content, in that particular reply there will be a MAC address of the machine, okay। जिसका आईपी एड्रेस था, अब उसका मैक एड्रेस वहां से रिप्लाई में आएगा, ठीक है। नाउ कैन सी द डायग्राम आल्सो, बस सिंपल इतना ही है। तो ARP रिक्वेस्ट, ARP रिप्लाई, ठीक है। हमेशा याद में रखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट मैसेज, ओके, एंड ARP रिप्लाई इज यूनिकास्ट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी दैट के जो हमेशा जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट ही होती है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड
टू अ पर्सन, वी हैव टू फाइंड अ पर्सन दैट कि भाई ये किसका है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, जिस किसी का भी है, ओके। so that request will go to the proper hand first, okay, and then it will reply to the source only, ठीक है। तो जो हमारा रिप्लाई आता है हमेशा यूनिकास्ट होता है, मतलब सिंगल मैसेज होगा, जिसको भेजना है उसी को जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी अ ब्रॉडकास्ट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या समझे, एआरपी। अब जरा ये डायग्राम मुझे देख के बताना, ये जो आपका एआरपी है ये क्या ले रहा है, लॉजिकल एड्रेस ले रहा है, ठीक है। देखा आपने वहाँ पे लॉजिकल एड्रेस बोला, भाई ये लॉजिकल एड्रेस है और इस लॉजिकल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस क्या है, तो एआरपी आपको उसका फिजिकल एड्रेस ला के देगा, ठीक है। वैसे ही उसके रिवर्स में काम करने वाला हमारे आर ए आर पी है, ठीक है। दैट इज रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट इज टेकिंग द फिजिकल एड्रेस, it is taking the physical address and giving you the logical address, ठीक है। अब ये फिजिकल एड्रेस किसका रहेगा, खुद का रहेगा। जब एग्जांपल मैं नया नया आया हूँ, ठीक है, जैसे आपको एक नया स्टूडेंट आता है ना क्लास के अंदर, तो वो आता है, सर मेरा नाम XYZ है और मुझे मेरा रोल नंबर चाहिए, ठीक है। तो इन द सेम वे योर RARP वर्क्स, ठीक है। तो क्लास टीचर जो रहेगा वो अपने इसमें चेक करेंगे, ओके आपका नाम, हाँ आपका नाम ये है, ठीक है, आपका ही नाम और आपका रोल नंबर ये है, ठीक है। तो आपका इन द सेम वे जैसे यहाँ पर आपका रोल नंबर का आपका काम हुआ, वैसी एग्जांपल आप यहाँ पे उसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। सो योर RARP विल टेक द फिजिकल एड्रेस एज इनपुट एंड विल गिव द लॉजिकल एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका इसका वर्किंग, आई होप आपको इसका वर्किंग समझ में आया होगा। इसको आप लोग को अलग से एक्सप्लेन करना होता है, जब भी एआरपी और आरएआरपी ये दोनों साथ में आते हैं आपको, तो एआरपी आरएआरपी जब भी अगर आते हैं तो ये इसका ऑपरेशन आपको लिखना होता है कि भाई देखो पहले सिस्टम ए विल सेंड अ रिक्वेस्ट इन, जो भी है आपको उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वगैरह कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। एआरपी का पैकेट है, ठीक है, जो एआरपी पैकेट आपने देखा यहाँ पर, यहाँ पे RARP का पैकेट है, तो मैं आपको ARP का पैकेट पहले बता दूँ। अगर कभी रिक्वायर्ड है तो आपको ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करना है, अगर वरना मालूम पड़ा 5 मार्क के लिए पूछा और आपने इतना पूरा एक्सप्लेन करते बैठे। सो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, एक्सटेंड क्वेश्चन का वेटेज, आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। अगर चाहे तो ARP RARP को पूरा 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है और उसका आप आंसर भी लिख सकते हो, इतना कंटेंट है इसके अंदर। लेकिन अगर कभी वो क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज के लिए नहीं पूछा, देन नो नीड टू आंसर इन दैट केस, ओके। तो आपको सिंपली ये, लेकिन ये डायग्राम तो मुझे ड्रॉ करना, दैट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। even though ARP and RARP is asked for 5 marks only, then you need to draw both the diagram, both the operation, ARP का operation and RARP का operation और उसका explanation, that is enough, okay। उसका explanation भी short में कर देना तो 5 mark के लिए बन जाएगा, ठीक है। So this is the ARP packet, okay, and the fields are quite simple, you can see hardware type। तो ये तो जो नॉर्मल फील्ड्स है जो कि हर पैकेट में होती है वो है। प्रोटोकॉल टाइप आपका ARP है, नॉट RARP, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में हार्डवेयर लेंथ, प्रोटोकॉल लेंथ, ये सब रिक्वायर्ड फील्ड है। आफ्टर दैट ऑपरेशन, क्या आप कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज रिक्वेस्ट का अलग, रिप्लाई का अलग, पैकेट सेम होता है, बट इन ऑपरेशन फील्ड अगर तो 1 है तो मतलब कि भाई ये जो है ना वो रिक्वेस्ट है, और अगर 2 है तो इसका मतलब कि ये जो पैकेट है वो रिप्लाई पैकेट है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक रहेगा, ओके। उसके अलावा 4 फील्ड और इसके अंदर विच आर वेरी वेरी सिंपल। वन, द फर्स्ट इज सेंडर्स का हार्डवेयर एड्रेस, सेंडर्स का प्रोटोकॉल एड्रेस, टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस और टारगेट का प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। ये 4 फील्ड होती है। अब जाहिर बात है हमारे पास में ARP के अंदर क्या है, हमारे पास में लॉजिकल एड्रेस है और हमको क्या चाहिए, फिजिकल एड्रेस चाहिए। मतलब हमारे पास में अभी ARP रिक्वेस्ट के अंदर, ARP रिक्वेस्ट में हमारे पास में क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस नहीं है। सी हमारे पास में फिजिकल एड्रेस नहीं है, इसीलिए इस पर्टिकुलर फील्ड को उन्होंने मार्क किया हुआ है। सी यहाँ पर जो मार्क किया हुआ है ये आपका, हम लोग चाह रहे कि हमको ये चाहिए, ठीक है। टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस को हमेशा क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस भी बोलते हैं या फिर फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो टारगेट का फिजिकल एड्रेस हमको चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट फील्ड इन अ रिक्वेस्ट, ओके। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर रिक्वेस्ट रहेंगे तो ये फील्ड नहीं रहेगा, और अगर ये रिप्लाई रहेगा तो यहाँ पर ये चीज फील्ड रहेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। देखो हार्डवेयर एड्रेस हमेशा 6 बाइट का होता है
और आपका जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है यानी कि आईपी एड्रेस ये हमेशा 4 बाइट का होता है। देखो इसका और एक नाम हम मतलब हम लोग को समझ में आया, दैट इज द प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑल्सो कॉल्ड एज आईपी एड्रेस, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल एड्रेस, ऑल्सो कॉल्ड एज आईनेट एड्रेस। तो बहुत सारे नाम है, ठीक है, तो आपको समझना है, ठीक है। तो ये सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस, सेंडर का आईपी एड्रेस, हार्डवेयर का जो भी आपके टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस और टारगेट का प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये चीज़ हमारे पास सब है, ये नहीं है हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में ये नहीं है, इसके लिए इसको मार्क करके रखें। सो दिस इज द एआरपी पैकेट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, तो इसके अंदर कुछ है नहीं, ये तो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड ही है, हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल लेंथ, हार्डवेयर लेंथ, ये सब तो रिक्वायर्ड फील्ड है। प्रोटोकॉल टाइप आपका एआरपी है, ओके, नॉट आरआरपी। ऑपरेशन आपका या तो रिक्वेस्ट रहेगा या तो रिप्लाई रहेगा, डिपेंड ऑन द पैकेट, ठीक है। सो दिस इज द एआरपी पैकेट। आगे बढ़ते हैं, इसका ये एक्चुअली इनकैप्सुलेशन है। आपको ये पूरा का पूरा एआरपी पैकेट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा आपका जो एआरपी पैकेट है, ये पूरा का पूरा एआरपी पैकेट विल फिट इनसाइड अनदर पैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन करना। तो आपका जो पैकेट है वो आपका इस पर्टिकुलर डेटा सेक्शन में चले जाएगा, और फिर उसके बाद में जो बोलते हैं ना पैकेट में पैकेट, पार्सल में पार्सल, ठीक है, उसको और रैपिंग और ऊपर से बॉक्स, तो वैसे ही कुछ है ये इनकैप्सुलेशन ऑफ एआरपी पैकेट। एआरपी पैकेट कैन नॉट बी सेंट एज इट इज, ARP packet cannot be sent as it is. We have to send ARP packet inside any Ethernet packet so that it can travel in the network, ठीक है, बिकॉज ARP पैकेट में उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, उतने उसके अंदर जो भी रहेंगे कैपेबिलिटी है, और मतलब उसके अंदर उतना डिफेंसिव सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर हमारे ईथरनेट पैकेट में CRC भी है, CRC क्यों है, सिक्योरिटी के लिए, CRC क्यों है, हमारे पर्टिकुलर एड्रेस का एरर कंट्रोल चेक करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारे ARP में नहीं होती, इसके लिए उस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, पूरे ARP रिक्वेस्ट और रिप्लाई पैकेट को जो भी हमारा है उसको हम लोग उठा के डेटा में डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका जो बाहर वाला पैकेट है, समझ लो रॉकेट है, ये हमारा सैटेलाइट है और ये हमारा रॉकेट है। अभी हमारा रॉकेट जाएगा, रॉकेट हमारा हो जाएगा डिस्ट्रॉय, और हमारा ये जो 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 हमारा सैटेलाइट है ये हमारा यूनिवर्स में चला जाएगा। तो लाइक दैट ओनली, ठीक है। So this is nothing but the encapsulation of ARP packet which is done ओके। सो एवरीवन, अभी हम लोग आते हैं आगे, बस उसके बारे में इतना काफ़ी था, आप लोग स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं, कोई नहीं। आरपी पे हम लोग आते हैं, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट दिस वन ओनली, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू कंप्लीट दैट आईसीएमपी पैकेट, बिकॉज आईसीएमपी बहुत बड़ा है, ओके। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक, coming to the next topic, that is RARP, okay. So basically your RARP is nothing but the reverse address resolution protocol, okay. And the working already I have told you what is the working। तो एक बार वापस से हम लोग इसको वर्किंग ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो ये आपका RARP है, ठीक है, RARP दैट इज रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। सो वी आर प्रोवाइडिंग सम एड्रेस एंड इट इज गिविंग यू सम एड्रेस, ओके। RARP जैसा आपका यहाँ पर ARP, दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या लेगा आपका, ये क्या लेगा बोलो जल्दी से, और क्या रिटर्न करेंगे आपको। इसके लिए फर्स्ट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, कहाँ है सब लोग, किसी के एक की भी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। आप लोग एक रिप्लाई भी नहीं कर सकते। शाबाश, उसके बाद में भी खाली एक दो के रिप्लाई, उसके बाद में किसी का रिप्लाई नहीं। मैं भी और लोगों की तरह भी भगा देता हूँ, चलो। ओके, सो दिस इज RARP, दैट इज
reverse address resolution protocol. Okay, and it is taking the physical address. Okay, for example, any host comes inside. Let me show you with the help of this. If any host comes in the network, then it will come after coming in the network, it will request with the physical address because it needs an IP address. इसको क्या चाहिए, एक IP address चाहिए. तो ये अपना क्या करेगा, ये अपना physical address मतलब अपना MAC address, it will provide its MAC address एंड एक RARP रिक्वेस्ट. ओके, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हूँ, दिस इज द RARP रिक्वेस्ट. ओके, इन RARP रिक्वेस्ट इट टेक्स द फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस एंड इट विल सेंड द ब्रॉडकास्ट. ओके, तो इसके पास में गया, इसके पास में गया, इसके पास में गया, सबके पास में जा रहा है ये पैकेट. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर होस्ट इज आस्किंग फॉर द IP एड्रेस. भाई देखो मेरा फिजिकल एड्रेस ये है, काइंडली प्रोवाइड मी द IP एड्रेस. ओके, तो ये IP एड्रेस प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा सर्वर की होती है. हर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता IP एड्रेस. जैसे कोई सर्वर आपका इंस्टॉल्ड है तो वो सर्वर ही प्रोवाइड कर, बिकॉज सर्वर इज मेंटेनिंग ऑल द क्लाइंट्स. ओके, so your server will receive that particular RARP request, which is the broadcast, which was the broadcast message, which was the broadcast packet, okay, sent by the host. So when RARP server will receive that MAC address, तो वो क्या करेगा, अपने पास में एंट्री करेगा, अपने टेबल के अंदर एंट्री करेगा कि ये वाले मैक एड्रेस को मैं ये आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ. ठीक है, ये अपने पास एंट्री किया और उसको क्या करेगा, इट विल सेंड अ रिप्लाई, it will send a RARP reply which is the unicast. Okay, and it will send that particular reply to the host, जहाँ से मैसेज आया था वहीं पे इसको रिप्लाई देगा और उसको, भाई देखो तुम्हारी ये IP एड्रेस तुमको असाइन की जा रही है बिकॉज यू आर इन द नेटवर्क, सो वी आर असाइनिंग एन IP एड्रेस टू यू. ओके, सो इट विल टेक द IP एड्रेस. ओके, तो बेसिकली जो आपका RARP है, RARP, it takes the physical address, it takes physical address. Okay, and it provides the IP address. Okay, ये आपका क्या है, RARP ऑपरेशन है. ठीक है, तो अगेन RARP इज RARP रिक्वेस्ट, RARP रिप्लाई, तो दो में काम होता है. तो वैसे ही सेम चीज इसका RARP पैकेट भी है. हार्डवेयर लेंथ इज सेम, हार्डवेयर टाइप, हार्डवेयर लेंथ एंड प्रोटोकॉल, दीज आर द सेम. प्रोटोकॉल टाइप इज विल बी RARP, the protocol type will be RARP. okay, and operation will be, देखो यहाँ पे request 3, reply के लिए 4. तो हमारे ARP के अंदर ये क्वेश्चन वाइवा क्वेश्चन है, ARP के अंदर जो हमारी रिक्वेस्ट होती है उसका होता है 1 और जो रिप्लाई होता है वो होता है 2. ओके, इन RARP request will be identified by the 3 and reply will be identified by 4. ठीक है, 1 2 3 4 का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आफ्टर दैट अगेन सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस, सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस, टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस, टारगेट का प्रोटोकॉल एड्रेस. ठीक है, तो ये चीज़ें होती है. एंड ऑब्वियसली हमारे पास में आईपी एड्रेस नहीं होता है, सेंडर प्रोटोकॉल, सेंडर का, क्योंकि सेंडर को चाहिए, ये सेंडर जो भेज रहा है, सेंडर का प्रोटोकॉल मतलब आईपी एड्रेस उसको रिक्वायर्ड है. तो फॉर दैट सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस का यहाँ पर फील्ड एम्प्टी है. ये आपके रिक्वेस्ट के अंदर ये चीज़ ये नहीं रहेंगी, रिप्लाई में यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएंगे. ठीक है, तो ये इसका RARP पैकेट है. एंड अगेन RARP packet cannot be sent as it is in the network, so it is encapsulated inside an Ethernet packet, inside IP packet, and then it is sent. Okay, RARP and ARP, both the packets, both the request reply packet cannot be sent as it is in the network, so they are encapsulated inside IP packet and then it is sent. Okay, so the format is, you can see this is the format for it. Okay, so done. ARP and RARP. So hope you people understood what is ARP and RARP. ARP, address resolution protocol, RARP, reverse address resolution protocol. So these are the two protocols from which we can perform the dynamic mapping. Okay, so we know what is static mapping and dynamic mapping. So dynamic mapping can be done with the help of these two protocols, that is ARP and RARP. RARP works, the operation we have seen, RARP works in the request and reply form. रिक्वेस्ट के अंदर भी क्या होता है, उसके पास उसका पैकेट फॉर्मेट क्या होता है, एंड एवरीथिंग वी हैव सीन राइट नाउ. ठीक है, आई होप दिस टॉपिक यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. टुमारो वी कैन स्टार्ट विद ICMP, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल. बेसिकली क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या है, ICMP क्या है, और व्हाई वी आर यूजिंग द ICMP पैकेट,
ओके, और कितने टाइप के मैसेजेस होते हैं, उनके कोड्स क्या क्या होते हैं, तो एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस होते हैं, एरर रिपोर्टिंग में क्या क्या रिपोर्टिंग होती है, एंड ऑल दैट विल ट्राई टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू सो मच.